السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر نامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے 5 انعامات۔ رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، عذاب قبر سے محفوظ ہوں گے، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ متحدہ ضلعوں میں ملعون راجہ سنگھ کے خلاف مختلف پولیس اسٹیشنوں میں نوجوانوں قائدین نے کی شکایت درج۔ پولیس کمشنر PSI چیتنیا نے شہر کے مختلف علاقوں کی اچانک تنظیم عمل میں لاتے ہوئے شام کے وقت گاڑیوں پر پھرنے والوں کی تفصیلات کے تعلق سے کی آگاہی حاصل۔ رورل MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی سے ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان نے ملاقات کرتے ہوئے دیا پرسہ۔ کمارم بھیم کی تحریک سے تلنگانہ جاگرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے ٹائنگ بورڈ میں کمارم بھیم کے مجسمے تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے پیش کی گلِ عقیدت۔ ورنی منڈل میں سیتاپور ریزروائر کاموں کا کلکٹر T وینے کرشنا ریڈی نے لیا جائزہ۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ IUML کے وفد کی جانب سے محکمہ پولیس کے عہدیداروں سے ملاقات۔ ملعون راجہ سنگھ کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کے لیے تحریری نمائندگی۔ آج انڈین یونین مسلم لیگ کے نظام آباد وفد نے شہری صدر مرتضی حسین اور سینئر سیاسی قائد نیئر جاوید و دیگر کے ہمراہ شہر کے 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن پہنچتے ہوئے ملعون راجہ سنگھ کے خلاف تحریری شکایت پارٹی کی جانب سے درج کروائی اور کہا کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور اس میں ہر مذہب کو اپنے حقوق حاصل ہے، لیکن ملعون کی جانب سے بار بار مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے شرمناک بیانات دیے جانے کے باوجود بھی محکمہ پولیس کی جانب سے کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، جو افسوس ہونے کا اظہار کیا۔ جو ملعون راجہ سنگھ جس طریقے سے ہمارے حضور کی شان میں گستاخی کیا، اس سلسلے میں آج CI صاحب اور ASI صاحب کو ایک میمورنڈم پیش کیا گیا۔ CI صاحب نے تیقن دیا کہ اس کے اوپر ہم سیریس ایکشن لیں گے اور FIR کریں گے، اور میں CP نظام آباد سے بھی ادباً گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں سیریسلی ایکشن لیتے ہوئے اس کے اوپر FIR کرے، اور جو دفعات لگتے ہیں جو کمیونل رائٹس پھیلانے کی کوشش کیا جا رہا ہے راجہ سنگھ کی طرف سے، یہ ہمیشہ کی طرح ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی سیریس ایکشن نہیں ہو رہا، لے رہا ہے کورٹ سے بیل لے رہا ہے، چھوٹ جا رہا ہے، پھر اس طریقے کی حرکت کر رہا ہے ہمارے حضور کی شان میں۔ آپ سے میری ادباً گزارش ہے CP صاحب سے اس کے اوپر سیریس ایکشن لیتے ہوئے FIR کیا جائے۔ اللہ حافظ۔ امن و امان کی برقراری کے لیے ملعون راجہ سنگھ پر محکمہ پولیس سخت سے سخت کارروائی کرے۔ بودھن کے نوجوان نے بودھن پولیس اسٹیشن میں کی شکایت درج۔ رحمان الرحیم، جس نے بھی شان رسالت میں انگلی اٹھائی، تحقیق کے اس کے نطفے میں فرق کی ہے گواہی، اگر یقین نہ ہو تو اپنی ماں سے جا کے پوچھ لینا، بات تو سچ ہے مگر تیرے باپ کی ہے رسوائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بودھن SHO میں ایک تحریری یادداشت پیش کی گئی، ایک ملعون گستاخ رسول جو سرزمین تلنگانہ میں ایک آزاد صور گشت کر رہا ہے، غیر تو غیر اسے اپنے بھی ٹھکرا چکے ہیں، اور یہ بارہا اپنے بیانات سے یہ بات کی دلیل دیتے آ رہا ہے کہ وہ مختلف نطقوں سے پیدا ہوا ہے۔ میں اس کے بیان پر اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنی شخصیت اور اپنی گندی ذہنیت ظاہر کر رہا ہے۔
मगर वो उसकी अपनी कम्युनिटी के ऊपर इस तरह की बात नहीं है, ना वो खुद को भी बदनाम कर रहा है और अपनी कम्युनिटी को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मगर ज़मीनी हकीकत ये नहीं है और ये फ़िरक़ा वाराना को बारहा तरजीह देने की कोशिश कर रहा है। और इस पर हुकूमत अपना पंजा और क़ानून अपना पंजा कसने से बाज आ रही है, क्या है सियासी वजह से हो या वक्ती हुकूमत या हिंदुस्तान की हुकूमत की पुष्टपुनाही की वजह से इस तरह के बयानात निकल कर आ रहे हैं। मैं हुकूमत से और पुलिस महकूमों से इंतहाई मौदीबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पर अपना शिकंजा कसे और इसे सलाखों के पीछे फेंके, वरना आने वाले नताइज, आने वाले हालात अमन नुक़्स अमन को बरकरार रखने में कोई उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि ये वो मामला थे जिसकी तरफ से उम्मतुल मुस्लिमीन, ख़ासकर नौजवान, ख़ासकर तमाम मुसलमानों के जज्बात के साथ इस तरह के मामला पेश हो रहे हैं। फिर हम ही को ज़िम्मेदार ठहराया करते हैं कल लाइन ऑर्डर के मसले पर, हम ही को तरह तरह की बातें रख देते हैं। क्या ये दिख नहीं रहा है कि ये आए दिन मुसलमानों पर इस तरह की बातें रख रहा है? मैं महकूमे पुलिस से और तमाम महकूमों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पर नौजवानों की जानिब से मालून राजा सिंह के खिलाफ शहर के 5th टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। आज मालून राजा सिंह के खिलाफ आज नौजवानों की जानिब से शहर के 5 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का इन्होंने मुतालबा किया और कहा कि इस मालून पर मुख्तलिफ मुकदमात मौजूद होने के बाद भी महकमे पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मौके पर इनके हमरा शेख नुशू, शेख फैसल, शेख लायक, मोहम्मद इसहाक, शेख अखिल व दीगर मौजूद थे। आज हम लोग 5 टाउन हाईवे पे जो मालून राजा सिंह है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी किया है, इसके ऊपर FIR बुक करने के लिए आए हुए हम लोग आज 5 टाउन के एसआई साहब को दे दिया गया है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में FIR काफ़ी आ जाएंगी। वहीं निज़ामाबाद के CP साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ इसके ऊपर एक्शन लीजिए साहब, और तेलंगाना के DGP साहब से गुजारिश करते ये राजा सिंह मालून जो हर वक्त हिंदू मुसलमान कराता रहता है, ये लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करा तेलंगाना का, इसके ऊपर एक्शन लीजिए, इसको PT एक्ट लगाइए इसको और जेल को। पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या ने गुज़िश्ता शब शहर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों की अचानक तनखी। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या ने गुज़िश्ता शब शहर के अहम तरीन इलाक़ों रेलवे स्टेशन, RT बस स्टैंड, गांधी चौक, नेहरू पार्क, शिवाजी नगर, कंटेश्वर, देवी रोड, फ्लाई ओवर ब्रिज व दीगर मकामात की बारीक बीनी से तनक़ी अमल में लाई गई। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ज़िला निज़ामाबाद में किसी भी किस्म के जराइम न होने के लिए कबल अज़ वक्त एहतियाती इक़दामात के तहत बाहर के इलाक़ों से आने वाले अफराद शहर के RT बस, रेलवे स्टेशन के अलावा दीगर इलाक़ों में रहते हुए किसी भी किस्म की वजह न होने के बावजूद भी बाहर नज़र आने वालों को चेक किया और इनको काउंसलिंग अमल में लाते हुए फिर दोबारा किसी भी काम के बगैर रात के औकात में नज़र आने की सूरत में मुकदमा दर्ज करने के ताल्लुक़ से वजाहत किया। आज कुमारा भीम की बरसी के मौके पर आदिवासी नायक पुर सेवा संगम की जानिब से खिराज अक़ीदत पेश की गई। आज कुमारा भीम की 85वीं बरसी के पेश नज़र आदिवासी नायक पुर सेवा संगम के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर खिराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर ज़िला निज़ामाबाद सदर जी रामचंद्र, साबिक़ा ZP चेयरमैन D विट्ठल राव ने कहा कि कुमारम भीम के फ़राइम को हासिल करने के लिए हर एक को कोशिश करने की ताकीद की। इन्होंने कुमारम भीम की जानिब से फ़राहम किरदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इन्होंने हर एक नौजवान को इनके नक्श कदम पर चलने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि आज रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से कुमारम भीम की बरसी को सरकारी तौर पर मनाने का फ़ैसला करने पर इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि कुमारम भीम की जयंती और यौम वफ़ात के मौके पर हुकूमत की जानिब से तातील का ऐलान करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में नायक पोर्ट संगम के कायदीन, अवाम नुमाइंदे के अलावा दीगर ने शिरकत की। అలా దౌర్జన్యం చేసే వాళ్ళని కాపాడిన మహానాయకుడు కుమ్రం భీమ్. అందుకే కుమ్రం భీమ్ చెప్తాడు ఆయన జల్ జంగల్ జమీన్, భూమి నీరు అడవి అని చెప్పి ఆయన స్లోగన్. ఎవరైతే దున్నేవాడు ఉంటాడో భూమి అయినదే అని చెప్పేసి చెప్పిన వ్యక్తి కుమ్రం భీమ్. ఆదివాసులు మరి అడవులను సంరక్షిస్తూ అడవులను పొలాలుగా దున్నుకొని అడవులను హక్కుగా చేసుకున్న ఆ రోజుల్లో నైజాంను ఎదిరించి మరి ఆదివాసుల పక్కన నిలబడ్డ వ్యక్తి కుమ్రం భీమ్.
रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने निज़ामाबाद रूरल कैंप दफ्तर में मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। गुज़िश्ता माह 29 तारीख को निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के वालदा मोहतरमा लक्ष्मी नरसिम्हा के सानिया इर्तिहाल होने के ताल्लुक़ से हम सब वाक़फ़ियत रखते हैं। इस ताल्लुक़ से हासिल किर्दा इत्तला के फौरी बाद रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शहर निज़ामाबाद के बाईपास रोड में वाक़ रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से मुलाकात करते हुए पुरसा देते हुए इजहार ताज़ियत पेश की। बाद अज़ां रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के मरहूम वालिदा मोहतरमा लक्ष्मी नरसिम्हा की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी के कायदीन मुन्नीपल्ली साई रेड्डी, चिन्ना साई रेड्डी, कांग्रेस कारकुना के अलावा दीगर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवाही पर होने वाले हमले की सख्त मजम्मत करते हुए KVPS ने ज़िले के नांदेवाड़ा चौरस्ते पर राकेश किशोर नामी जुनूनी शख्स का अलामती पुतला किया नजर आतिश। ज़िले के मुकाम पर KVPS के ज़ेर एहतमाम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवाही पर होने वाले हमले की सख्त मजम्मत करते हुए राकेश किशोर नामी जुनूनी शख्स के अलामती पुतला नज़र आतिश किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश की सख्त मजम्मत की। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तौहीन नहीं बल्कि हिंदुस्तानी आइन अवाम की तौहीन होने के मुतरादफ होने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि जुनूनी शख्स राकेश केशव नामी शख्स चीफ जस्टिस से बरसरे आम माफ़ी मांगना चाहिए। हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक तौहीन करने वाले शख्स को सख्त सज़ा देने का KVPS की जानिब से मुतालबा किया गया। इस प्रोग्राम में N नरसिया, ज़िला सदर G गंगाधर, CITO राजू अंजया, KVPS संगम के कायदीन ने शिरकत की। संगम आध्वर्యంలో నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని చేసి చీఫ్ జస్టిస్ గవాయి పైన ఉన్నటువంటి న్యాయవాది అయినటువంటి కుమార్ గారు వివక్షకు అనుకూలంగా తన బూటు కాలును తీసి జస్టిస్ను కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేసిండు. అంటే ఇది సామాన్యంగా వివక్షకు సంబంధించినటువంటి విషయమే. మనువాదానికి సంబంధం లేని మనువాదం అనేటువంటిది తన లోపల ఉన్నటువంటి మనువాదము బయటకు చూపించడం జరిగింది. शहर में BLTU के ज़ेर एहतमाम मज़दूरों से मुतालिक मसाइल के हल के लिए मुनाक़िदा होने वाली दूसरी रियासती महासभा को कामयाब बनाने के लिए इससे मुतालिक वाल पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। जिला निज़ामाबाद के मुकाम पर तेलंगाना भवा जना बीड़ी वर्कर्स में यूनियन BLTO कायदीन के ज़ेर एहतमाम इस माह की 11-12 तारीख को मुनाक़िद होने वाले दूसरी रियासती महासभा को कामयाब बनाने के लिए शहर के मुबारक नगर, गौतम नगर और कंटेश्वर बीड़ी वर्कर्स के हमरा वाल पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर BLTO रियासत सदर S सिद्दी रामलू ने कहा कि इस माह की 11 तारीख को ज़िला निज़ामाबाद के मराकिज़ पर मुनाक़िद होने वाले जलसे आम में रियासती दही तरक्यात वज़ीर सीतक्का ने शिरकत करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अक्टूबर 11 तारीख दोपहर के वक्त कदीम कलेक्टर ग्राउंड में भारी जलसे आम का इनकाद अमल में लाया जाएगा और दूसरे दिन यानी अक्टूबर 12 तारीख को तिलक गार्डन में न्यू अम्बेडकर भवन में तेलंगाना में 13 ज़िलों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन इस जलसे में और दूसरे दिन यानी इतवार को 250 अवाम नुमाइंदे शिरकत करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस दिनों महासभा में रियासत तेलंगाना में 10 लाख बीड़ी वर्कर्स को दरपेश मसाइल को हल करने का मुतालबा करने का इजहार किया। అధికారంలోకి వచ్చే ముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 2023లో అందరికీ ఎలాంటి షరతులు లేకుండా 4016 రూపాయలు ఇస్తామని, మరి ఇళ్లల్లో వంటలు చేసే మహిళలకు 2500 పింఛన్ ఇస్తామని 2 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నది. ఈనాటికి అమలు చేసిన పాపాన లేదు. ఇప్పటికైనా ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలా. కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి మోడీ ప్రభుత్వము EPF పెన్షన్ కేవలం 900, 500, 1000 రూపాయల కంటే ఎక్కువ రావడం లేదు. तेलंगाना RTC में ड्राइवर श्रमिक पोस्टों पर तकर्रुरात के मामले में SC ज़ात के सर्टिफिकेट पर तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने वजाहत दी। TGRTC में 1000 ड्राइवर 734 श्रमिक पोस्टों में भर्ती के लिए 17 सितंबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन से मुतालिक ऑनलाइन दरखास्तें कल सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है। इसके मद्देनज़र
TSLPRB चेयरमैन IPS VV श्रीनिवास राव की जानिब से एक बयान जारी किया गया है। इस पोस्टों के लिए दरखास्तें देने वाले दर्ज फहरिस्त ज़ातों के उम्मीदवारों के पास नए फॉर्मेट में ज़ात का सर्टिफिकेट मुंसलिक करने के ताल्लुक से वाज़े किया है। इन्होंने नए कानून के मुताबिक मुकर्ररा फॉर्मेट में ही SC ज़ात का सर्टिफिकेट को तहसीलदार या मी सेवा मराकज़ से लेने की ताकीद की। ज़िला निज़ामाबाद में न्यू डेमोक्रेसी पार्टी की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। ज़िला निज़ामाबाद में न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन के गज़ा में इसराइल और अमेरिका की जानिब से की जा रही नस्ल कशी के मुखालिफत करते हुए शहर में वाक़े IFTO दौरा का नगर दफ्तर से वेकली मार्केट चौरस्ते तक फ़लस्तीन के हक़ में इजहार एकजहती करते हुए एहतजाजी मुज़ाहरा किया। इस मौके पर पार्टी ज़िला सेक्रेटरी आकुला पापया ने कहा कि इसराइल की नस्ल कशी की वजह से अब तक 66,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इन्होंने कहा कि आलमी ममालिक बहरी जहाज़ों के ज़रिए गज़ा के अवाम खुराक फराहम करने के दौरान इन्हें भी तबाह करने वाले इसराइल की हरकत की सख्त मजम्मत की। इन्होंने कहा कि इस तबाही को रोकने के लिए हिंदुस्तान की जानिब से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा किया। ప్రజల శత్రువు యుద్ధాలను వెంటనే ఆపాలి, యుద్ధాలను ఆపేసి ప్రజల మధ్యన సమైక్యం తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్తున్నాం। ఈ అమెరికా టెర్రరిస్టు చర్యల వల్లనే ఆయుధాలను సప్లై చేసి ప్రపంచ మానవ హోమన దాని వనరులన్నింటినీ కూడా తన గుప్పిట్లో పెట్టుకొని ప్రజల మధ్యన యుద్ధాలను చేస్తుంది। ఈ యుద్ధాలను వెంటనే ఆపాలని कुमारम भीम की तहरीक से जागृति मसाइल को हल करने के लिए जद्दोजहद करने का तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने किया इजहार। आज कुमारम भीम की बरसी के मौके पर हैदराबाद के टाइंग बोर्ड पर वाक़े इनके मुजस्समे पर तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर के कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद तरक्याती काम ना होने के बराबर है और ख़वातीन को ज़चगी की सहूलियत मैसर नहीं है। इन्होंने कहा कि आदिवासी सेक्शन सदर एल राजू के ज़ेर एहतमाम आदिवासियों से तबादला ख्याल करते हुए आदिवासी के हुकूक के लिए अनक़रीब अमल का ऐलान करने का इजहार किया। కొంతమంది జననం చరిత్ర అయితే కొంతమంది మరణం చరిత్ర అవుతుంది। కొమరం భీం గారు వారి మరణంతోని ఆదివాసీలకు పర్మనెంట్ గా సాధించి పెట్టినటువంటి హక్కులు అనేకం ఉన్నాయి। रामायण तहरीर करने वाले अजीम शायर महर्षि वाल्मीकि की जयंती तकारीब निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। निज़ामाबाद में पसमानदा तबक़ात वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम कलेक्ट्रेट दफ्तर कॉन्फ्रेंस में सरकारी तौर पर इनेकाद अमल में लाए गए। वाल्मीकि की जयंती तकारीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कलेक्टर T वेने कृष्णा रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर ने महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए खिराज अक़ीदत पेश की। प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों ने शिरकत की। रियासती वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िदा इजलास में LRD MLA मदन मोहन ने की शिरकत। हैदराबाद में वाक़ डॉक्टर BR अम्बेडकर रियासत तेलंगाना सेक्रेटरीट में रियासती वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के ज़ेर एहतमाम मुनाक़िदा इजलास में LRD MLA मदन मोहन ने शिरकत की। इस इजलास में कालश्यूरम 22वें पैकेज कामों के पेश रफ़त के अलावा हाल ही में होने वाले बारिश की वजह से तबाह होने वाले पोचाराम प्रोजेक्ट को मुस्तहकीम करने और सिल्ट को अलहदा करने के अपने इक़दामात और इसके अलावा प्रोजेक्ट में पानी के तेज़ बहाव की वजह से जंगल के तौर पर तब्दील होने वाले दरख्त को अलहदा करने से मुतालिक उमूर पर तफसील से तबादला ख्याल का। इस प्रोग्राम में महकमे आपाशी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ENC चीफ इंजीनियर में जुक्कल रुकन असम्बली लक्ष्मी कानत राव ने शिरकत की। वर्णी मंडल सिद्धापुर के पास जारी रिजर्वायर कामों का कलेक्टर T वेने कृष्णा रेड्डी ने लिया जायजा। जिला कलेक्टर T वेने कृष्णा रेड्डी ने वर्णी मंडल के सिद्धापुर के पास जारी रिजर्वायर कामों का जायजा लेते हुए इन्होंने पानी के तेज बहाव से मुलेखा किनाल और ऊंचाई पर मबनी पहाड़ों के इलाके तक पैदल दौरा करते हुए रिजर्वायर बंद की तामीर से मुताल्लिक़ इलाकों का मुशाहिदा किया और अब तक शुरू किए गए कामों की तफसीलात के बारे में इससे मुताल्लिक़ ओहदेदारों से आगाही हासिल की। कलेक्टर ने गूगल मैप के तहत अराजी की तस्दीक के लिए महकमे जंगलात
रेवेन्यू के रिकॉर्ड का बारीक बीनी से जायजा लिया। अराजी के तनाज़े से मुतालिक उमूर पर इनके साथ रहने वाले बोधन सब कलेक्टर विकास मेहता ने तबादला ख्याल किया। कलेक्टर ने खुसूसी तालमेल के साथ मुतल्लिक़ा कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों को अहकामात जारी की। इख्तिताम से क़बल नज़र डालते आज की अहम सुर्खियों की जानिब। मुत्तहिदा ज़िलों में मलून राजा सिंह के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में नौजवानों कायदीन ने की शिकायत दर्ज। पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों की अचानक तनखी अमल में लाते हुए शाम के वक्त गाड़ियों पर फिरने वालों की तफसीलात के ताल्लुक से की आगाही हासिल। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी से रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। कुमारम भीम की तहरीक से तेलंगाना जागृति मसाइल को हल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। हैदराबाद के टाइंग बोर्ड में कुमारम भीम के मुजस्समे तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने पेश की गुले अकीदत। वर्नी मंडल में सीतापुर रिजर्वायर कामों का कलेक्टर T. कृष्णा रेड्डी ने लिया जायजा। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।